ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر کے ساتھ۔ قومی تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا، تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کا ظاہر کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن مرتب کر لی۔ اس سے قبل 39 اراکین تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ نئے الیکشن ایکٹ کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تبدیل کر دی گئی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سے واپس لی جانے والی نشستوں کا بھی پارٹی پوزیشن میں ذکر شامل ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 110، پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں، MQM 22، خاف لیگ 5، IPP کے 4 اراکین ہیں۔ مسلم لیگ ضیاء، BAP اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن ہیں۔ سنی اتحاد کونسل 80، JUI فے 8، آزاد اراکین کی تعداد بھی 8 ہے۔ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کی صورت میں 23 مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کو ملیں گی۔ مسلم لیگ نون کو 15، پیپلز پارٹی 5 اور JUI کو 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جنرل یانگ یون ڈونگ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سی پیک کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے KCR منصوبے کو بھی سی پیک پروجیکٹس میں منظوری سے متعلق بات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ حیدرآباد تا سکھر موٹر وے سی پیک پروجیکٹ میں شامل کروانا کی خواہش کا اظہار کیا اور حیدرآباد تا سکھر موٹر وے سندھ کا اہم منصوبہ ہے۔ چائنیز اتھارٹی ان دونوں منصوبوں پر غور کر رہی ہے۔ کونسل جنرل چین کی جانب کونسل سے وزیر اعلیٰ سندھ کو اپنے قومی دن کے پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت بارشوں میں تباہ حال اسکولوں کی تعمیر اجلاس ہوا۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بارشوں سے متاثر اسکول کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بچوں کی تعلیم کسی صورت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب صدیقی سے۔ جی ثاقب، اجلاس کا احوال بتائیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت بارشوں میں تباہ حال اسکولوں کی تعمیر سے متعلق اجلاس ہوا ہے۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بارشوں سے متاثر اسکول عمارتوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بچوں کی تعلیم کسی صورت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب صدیقی سے۔ جی ثاقب، اجلاس کا احوال بتائیں۔ جی بالکل، کراچی میں جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جو صدارت میں جو ہے اجلاس ہوا ہے، جس میں اجلاس میں جو ہے وزیر تعلیم سردار شاہ، چیف سیکرٹری سندھ اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ سندھ میں بارشوں کے دوران جو ہے جو اسکول تباہ ہو گئے ہیں یا جن اسکولوں جو متاثر ہوئے ان کو جو ہے فوری طور پر مرمت کرائی جائے، یا جو بالکل ہی متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے وہاں پہ تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کیے جائیں، جس پر سردار شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں سن 2000 میں جو بارش کے دوران جو ہے 40,978 اسکولوں میں سے 19,808 اسکول بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ متاثرہ اسکولوں میں جو ہے مکمل طور پر جو تباہ ہوئے تھے وہ تھے 12,305، اس کے اوپر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے ان اسکولوں کو جو ہے مرمت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے جو ہے کہا گیا ہے کہ جو اسکول ہیں ان کی جلدی سے مرمت کی جائے۔ اسی طریقے سے یہ کہا گیا ہے 100 اسکول جو ہیں وہ جو حیدرآباد کے اندر جو 20 اسکول ہیں، 29 اسکول خیرپور میں، 29 اسکول لالخانہ اور 22 سکر ڈویژن میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ اس وقت تباہ شدہ حال جتنے بھی اسکول ہیں ان کے پروگراموں کے تحت زیر تعمیر جو مختلف پروگرامس ہیں اس کے تحت جو ان کو درست کیا جائے۔ چین کی گرانٹ سے جو ملی ہے اس سے جو ہے 100 اسکولوں کو تعمیر کیا جائے گا۔ یورپین یونین کی جو گرانٹ ہے اس سے 112 اسکولوں کو تعمیر کیا جائے گا اور 9 اسکولوں کو بھی جو ہے دیگر گرانٹ کے ذریعے جو ہے تعمیر کیا جائے گا۔ اسی طریقے جی بہت شکریہ ثاقب، آپ ہمیں اجلاس کا احوال بتا رہے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ناقد نظمی پر الیکشن کمیشن کے 3 افسران کو 120 دن کے لیے معطل کر دیا۔
इलेक्शन जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्ट एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टिनवारी को नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श को भी मुअत्तल कर दिया गया और हिदायत की है कि तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे, जबकि जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल को कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 17 सितंबर तक रात पिपरी कराची में स्टोरिंग रूम तालों को ज़बरदस्त तोड़ दिया गया और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के कई बैग्स को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन में मजीद कहा कि इंक्वायरी कमेटी में जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध नज़र अब्बास, डायरेक्टर वसीम अहमद और REC लाड़काना अब्दुल वहीद शामिल हैं। कमेटी 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीम एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने इसका इख्तियार बढ़ जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सदर की जानिब से तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की जल्द मंजूरी का इम्कान है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पाकिस्तान में जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ की गवर्नर मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। अहम खबर से नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर ने मुलाकात की। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तान में जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहाद ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की, जबकि मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल भी किया गया। और गवर्नर पंजाब ने जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर के 2 बरादर ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी बरामदात में मुआवनत का किरदार को सराहा। इस मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का ये कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात, मुश्तरका मजहब, सकाफत, बाहमी ताउन पर मबनी है। मजीद आपको आगाह करूँ कि गवर्नर पंजाब का कहना था कि आज़रबाईजान में लहराते पाकिस्तानी परचम आज़रबाईजान की अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत की अक्कासी भी करते हैं और पाकिस्तानी अवाम भी आज़रबाईजान के लिए मोहब्बत के जज्बात रखती है। और जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती वफूद के तबादले होने चाहिए। जबकि खिज़र फरहादोफ का मुलाकात के मौका पर कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान के साथ खड़ा हुआ। और खिज़र फरहादोफ का मजीद कहना था कि जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जुलाई 2024 में कामयाब सरकारी दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज भी हुआ है और पाकिस्तानी ताजरों के लिए तरजीही तजारती सहूलियात का मंसूबे पर काम जारी है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबों में ताउन के वसी मौके भी मौजूद हैं। जी, नुमाइंदा NTN गौहर सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि JUI और मौलाना फजल रहमान से उनकी पार्टी के 3 नस्लों से ताल्लुक, आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना है। तफसीलात हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। निजी TV चैनल से इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमसे कहा गया कि अपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि JUI और मौलाना फजल रहमान से उनकी पार्टी के 3 नस्लों से ताल्लुकात हैं। आइन की हिफाजत और
जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना JUI का है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो खौफ की सियासत करते हैं, ना मजबूरी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कभी खौफ या मजबूरी की सियासत नहीं की। कोई शक नहीं 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बिलावल का कहना था कि हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्स लगाना चाह रही थी। JUI के कामरान मुर्तजा ने कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम नहीं होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत से बात करके मुजव्वज़ा तरामीम से आर्टिकल 8 में तरमीम निकलवा दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट ने कहा कि आईनी तरमीम बिल पास हुआ तो मजीद बहरान होगा और फिर चलेगी। PTI रहनुमा अली जफर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में आईनी बहरान है। हुकूमत ने रातों रात आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, अगर बिल पास हो गया तो मजीद बहरान पैदा होगा। हुकूमत हमारी बात मान लेती है तो तहरीक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि खुद को जमहूरी कहने वाली हुकूमत जमहूरी उसूलों पर नहीं चलती और हुकूमत की आईनी तरमीम की वजह से जलसा ज़रूरी होगा। बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि NOC हो या ना हो, लाहौर में जलसा हर सूरत होगा। फैसला किया है कि हर हफ्ते मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। जलसे में कोई गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा बिलावल भुट्टो अपने नाना के कामों के खिलाफ इकदामात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए जिसने बेहतरी की कोशिश की उन्हें इबरत बनाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आइन बनाया, उनके साथ क्या किया। PTI के रहनुमा ने कहा कि बानी PTI को अपने बच्चों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मुलाकातों से मुतालिक अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। हिजबुल्लाह पर पेजर्स हमले से मुतालिक हमने दावा किया कि ये ताइवान या हंगरी ने नहीं बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस ने तैयार किए। हमने मुताबिक हंगरी की कंपनी इजरायली जासूसी नेटवर्क की फ्रंट कंपनी का हिस्सा थी। हंगरी की कंपनी और इसराइल के दरमियान बराह रास्त राब्ते के लिए 2 मज़ीद जाली कंपनियां बनाई गईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने वॉकी टॉकीज़ में सिर्फ बारूद नहीं रखा बल्कि असल में मैन्युफैक्चरिंग की। बल्गारियन मीडिया के मुताबिक बल्गारिया की कंपनी ने हिजबुल्लाह को पेजर्स फराहम किए। खबरों का सिलसिला हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें 77 इक़दामात, 70 मंसूबों और 60 प्रोग्राम का जायजा लिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग के PDWP के 28 इजलास हुए। पंजाब में अवाम की भलाई की 287 स्कीमों पर गौर हुआ। मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग दी कि ज़राअत, मौसमियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की का तफसीली जायजा लिया गया। तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरक्याती स्कीमों के लिए 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। ड्रोन और JIS मैपिंग से मॉनिटरिंग को मुतारिफ कराया जा रहा है। मंसूबों पर पेशरफ्त वक्त के वाज़े तायुन के साथ यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IG पंचशहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत दे दी और कहा कि पहले मरहले में 9,500 ट्रैकर्स डिज़ाइन और दीगर उसूलों की मंजूरी भी दी गई। डिवीजन के अरकान असेंबली से मुलाकात में उन्होंने कहा कि बेवाओं और गरीब अकलियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे, 5 लाख से ज्यादा घर दिए जाएंगे। इलावा अजीम मरियम नवाज की जेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें शुरा को बताया गया कि पंजाब में 35,000 से ज्यादा किसान कार्ड्स काश्तकारों को मिल गए हैं। पंजाब में पहले फेज में 7,500 ट्यूब वेल्स की सोलराइजेशन का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर के डिजाइन और दीगर उमूर की मंजूरी भी दी गई। आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की कार्रवाइयां जारी हैं। जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले अफगान मुसाफिर समेत मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन अंसारी से। जी मोहसिन, क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، دیکھیے بتاتے چلیں کہ FIA امیگریشن کراچی نے جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے جعلی دستاویزات پر سفر کرنے والا افغان مسافر سمیت 2 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔ مسافروں کی شناخت بشیر احمد اور اختر حسین کے نام سے کی گئی ہیں۔ بشیر احمد جو ہے وہ جعلی دستاویزات پر فلائٹ PC 131 کے ذریعے جرمنی سفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران ملزم کی دستاویزات جو ہے وہ مشکوک سی لگی، جس پر پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کو سیکنڈ لائن آفس کے فورنزک کے عمل سے جب گزارا گیا تو ملزم کے دستاویزات جو ہے وہ جعلی قرار پائے۔ ملزم بشیر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی آڑ میں چمن بارڈر کے ذریعے پاکستان داخل ہوا تھا۔ جب مسافر سے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ہسپتال کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی تو ملزم سوالات کے جو جوابات ہیں وہ تسلی بخش نہ دے سکا، کیونکہ ملزم پاکستان میں موجود کسی بھی ہسپتال میں علاج کی غرض سے گیا ہی نہیں۔ ملزم نے دوران تفتیش بتایا کہ پاکستان میں ویزے کی کڑی چھان بین کی وجہ سے اس نے میڈیکل کی بنیاد پر جو ہے پاکستان کا ویزا حاصل کیا تھا، جبکہ پاکستان کے ویزے کے حصول کے لیے بھی ملزم نے جعلی دستاویزات کا ہی سہارا لیا تھا، اور یہ تمام تر جعلی دستاویزات ملزم نے جو ہے وہ عبداللہ عزیز نامی ایجنٹ ہے اس سے 1500 افغانی جو ہے وہ رقم کے عوض جعلی دستاویزات بنوائے تھے۔ اس کے علاوہ ملزم بشیر کو گرفتار کر کے جو ہے وہ مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ جی جعلی دستاویزات پر سفر کرنے والے افغان مسافر سمیت 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے تھے ہمارے نمائندے محسن انصاری۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ لوگ عقل مند ہیں، پرفارمنس پر توجہ دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ بانی PTI مقبول ہیں۔ نجی چینل میں انٹرویو کے دوران اسما بخاری نے کہا کہ اسلام آباد کے جلسے میں صرف پختونخوا کے لوگ آئے، یہ لوگ ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KP میں 6 ماہ سے صرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا 1000 ارب روپے کا مقروض ہے، مقبولیت تو سائفر پر تھی، جھوٹے بیانیے بنا کر یہ کب تک عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ اسما بخاری کی فیک ویڈیو کے معاملے پر DG FIA عدالت طلب اسما بخاری نے کہا یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، ان میں کوئی تہذیب نہیں۔ سلمان اکرم راجہ پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کا لہجہ بھی ویسا ہی ہے۔ کوئی شخص بانی PTI یا علی امین کی طرح نہ بولے تو وہ PTI میں نہیں رہ سکتا۔ وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ تورو نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام بانی PTI بات کرتے ہیں۔ ظاہر شاہ تورو نے کہا کہ لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا، اگر ہوا تو پنجاب کے شہر شہر گلی گلی میں PTI کا جلسہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے ہدایات کی ہیں کہ لاہور جلسے میں شرکت کریں۔ وزیر اعلیٰ KP نے بھی واضح ہدایات دی ہیں کہ ہر صورت جلسے میں شرکت کریں۔ ظاہر شاہ تورو نے کہا کہ KP سے ضرور لوگ لاہور میں جلسے کے لیے آئیں گے، ہم تصادم نہیں چاہتے، پرامن طریقے سے جلسے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی لاہور میں جلسہ کیا، اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ 7 بجے تک جلسہ ختم کریں، کیا ہم پارلیمنٹ میں جلسہ کر رہے تھے؟ ظاہر شاہ تورو نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے پوری کوشش کی کہ جلسے کو ناکام بنایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور میں 21 ستمبر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے دائر درخواست نمٹا دی، جبکہ 3 رکنی فل بینچ نے کے لیے دائر درخواست خارج کر دی۔ سماعت کے آغاز سے پہلے ہی PTI کے اظہر صدیقی نے کہا اجازت ملنی ہی ہے، اگر اجازت نہ ملی تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ PTI کو لاہور میں جلسے سے اجازت سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں دوران سماعت دلچسپ جملوں کا بھی تبادلہ دیکھنے میں آیا۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے PTI کے جلسے کے لیے ڈیپٹی کمشنر کو 5 بجے تک فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی اور درخواست نمٹا دی۔ لاہور جلسے سے متعلق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور کی زیر صدارت PTI کے پارلیمنٹیرینز اور رہنماؤں کے اجلاس کی کہانی سامنے آ گئی۔ صوبے بھر سے قافلے صوابی میں جمع ہوں گے، جہاں سے قافلہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں لاہور روانہ ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
वजीर हर हलके से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत जारी की है, जबकि सूबे भर से काफले सवाबी में जमा होंगे, जहां से मरकजी काफला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में लाहौर रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक वजीर आला KP की हर सूरत जलसे गाह पहुँचने की भी अहकामात हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आंसू गैस, लाठी चार्ज से बचाव का सामान भी साथ रखने पर जोर दिया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में फैसला किया गया है कि रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि जलसे से मुतालिक तमाम वज़रा और अराकीन असम्बली वीडियो बयानात भी जारी करेंगे, जबकि कारकुनों को खुराक मुहैया करने की जिम्मेदारी भी मुतालिका अराकीन असम्बली की होगी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 30,000 से ज्यादा कारकुनान की जलसे में शिरकत की कोशिश की जाएगी। जलसे के लिए 21 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा से काफले पंजाब की तरफ रवां दवा होंगे। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI रोए से के रिहा के उन्हें मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाएंगे। कहा कि हमसे लोग मिलिट्री जेल में हैं, हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में ही है, किसी को मालूम को कब और कितनी सजा हो जाएगी। बानी PTI ने कहा है कि सुप्रीम अवाम ने बचाना है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI का कहना है कि ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। इस तरमीम से आपको और हमें सबको किसी वक्त भी उठाया जा सकता है और हमें मिलिट्री जेल में डाला जा सकता है। कितने हमारे लोग पाकिस्तानी मिलिट्री जेल में इस वक्त हैं। एक उनमें से हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम। ये नहीं है कि सिर्फ सिविलियंस हैं, एक्स मिलिट्री भी हैं जो एहतजाज में शामिल थे, लेकिन उन्हें कोई तोड़फोड़ तो नहीं की। वो तो सड़क के ऊपर अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे। वो बीमार हैं, लेकिन उनको किसी को नहीं पता कि कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ उनका इलाज होता है, और वो बहुत सख्त बीमार हैं। इसी तरह हमारे वहाँ जवान बच्चे हैं। उधर हमारा भांजा है हसन न्याजी। उनकी मुलाकात जब होती है उनसे फैमिली को सिर्फ बहन, उनकी वालिदैन और कोई और बीवी और कोई और उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। ये होता नहीं है। जब आप अडियाला में भी हैं, वहाँ पे सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। किसी को नहीं पता कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं। ये भी नहीं आपको पता चलेगा जब उनको सजा हो जाएगी। ये भी नहीं पता चले कितने सालों की सजा हुई है। अब ये वाले कानून वो लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं, हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है, किसी को मालूम नहीं कि उनको कब और कितनी सजा हो जाएगी। अलीमा खान के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि अब यह कानून लाना चाहते हैं कि किसी को भी उठाकर ले जाएं। दावा किया कि जज ने जल्द बानी PTI को सजा देनी है। यहाँ आपको बताएं कि एक बार फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन हुआ है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से जारी एलामे में बताया गया कि पाकिस्तान 21वीं मरतबा IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर बना है। एलामे में बताया गया कि PAEC के चेयरमैन बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। PAEC एलामे के मुताबिक 21वीं मरतबा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकनियत पाकिस्तान के IAEA में फ़याल किरदार की अक्कास है। जनूबी सूडान में तैनात भारतीय जनरल S मोहन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखकर पाकिस्तान के की पेशा वराना महारतों का एतराफ़ किया। भारतीय जनरल ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशा वराना महारत, लगन और खैर मुतसलसल अज़म को सराहा। खत में उन्होंने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल और लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के किरदार की खुसूसी तारीफ़ की। भारतीय जनरल S मोहन ने खत में लिखा कि जनूबी सूडान में पाकिस्तान दस्ते ने शहरियों के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग ऑपरेशनल माहौल में मुश्किल काम किए। पाकिस्तानी दस्तों ने जनूबी सूडान में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम किया है। पाकिस्तानी दस्ते ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2.5 लाख बेघर अफराद की हिफाजत की। भारतीय फ़ोर्स कमांडर का खत बैनुल अक़वामी अमन की कोशिशों में पाकिस्तानी फ़ौज के साख का सबूत है।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, कसूर में मुबैना गफलत से जच्चा बच्चा दोनों जाँ बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह 9 माह की हामला हफ्सा बीबी को डिलीवरी के लिए गायनी वार्ड में लाया गया। तबीयत ज्यादा खराब होने के बावजूद खातून डॉक्टर ने मरीजा को चेक न किया। आपको बता रहे हैं ये अफसोसनाक वाकया कसूर में पेश आया, जहां कसूर में डॉक्टर की मुबैना गफलत से जच्चा बच्चा दोनों जाँ बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में 9 माह की हामला हफ्सा बीबी को डिलीवरी के लिए गायनी वार्ड में लाया गया। तबीयत ज्यादा खराब होने के बावजूद खातून डॉक्टर ने मरीजा को चेक न किया। आपको बता रहे हैं कि कसूर में डॉक्टर की मुबैना गफलत से जच्चा बच्चा दोनों जाँ बहक हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में 9 माह की हामला हफ्सा बीबी को डिलीवरी के लिए गायनी वार्ड में लाया गया, जहां तबीयत ज्यादा खराब होने के बावजूद खातून डॉक्टर ने मरीजा को चेक न किया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज नौमान चौधरी से। जी नौमान, क्या वाकया है ये और ये किस तरह की गफलत हुई है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से जच्चा बच्चा जाँ बहक हो गए हैं। हामला खातून हफ्सा बीबी को डिलीवरी के लिए गायनी वार्ड में लाया गया, जहां पर तबीयत ज्यादा खराब होने के बावजूद खातून जो लेडी डॉक्टर थी उसने चेक करना गवारा नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर साहब कमरे में सोई हुई थी। हफ्सा बीबी के खामन का कहना है कि लेडी डॉक्टर को झुकाने की बेसूद कोशिशें की, मगर कोई भी बहाना साबित न हो सकी। इलाज में ताखीर के बायस हफ्सा बच्चे में जाँ बहक हो गई। अस्पताल में के लवाकी ने रात को डॉक्टर के वीडियो भी बनाई, जो कि सोशल मीडिया पर भी रिलीज हो गई और बाद में इसको उनके मोबाइल को डिलीट करवा दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गार्ड लवाकिन को लेडी डॉक्टर के कमरे में जाने से रोक रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल इसरार कर रहे हैं कि हमें कमरे में जाना दिया जाए, डॉक्टर साहब को बाहर बुलाया जाए ताकि वो मरीजा को चेक कर सकें। मरीजा की जब हालत ज्यादा खराब हो गई, लेडी डॉक्टर बाहर नहीं आई, तो कुछ देर बाद वो जाँ बहक हो गई और जो बच्चा था वो जाँ बहक हो गया। उन्होंने उसकी दरख्वास्त कर दी है कि इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। एमएस से जब हमारी बात हुई तो एमएस से डॉक्टर जुबैर साहब का कहना था कि मुझे इस वाक़े की खबर नहीं है, ये 3-4 दिन पुराना वाक़या है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज नौमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और बलूचिस्तान के शहर हबीब मुसाफिर कोच और बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो गए। हबविंदर के खतरनाक हादसा पेश आया, जहां मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम हो गया। हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए और जख्मियों में खवातीन बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाय वकुआ पर पहुंची, जहां से जख्मियों को विंदर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर कोच पंजगोर से कराची आ रही थी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़।